السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری سرفراز احمد، معلم شاد آدم شیخ ٹیکنیکل ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ بچوں، آج ہم لوگ اسٹینڈرڈ 10 کے سائنس سیکنڈ سبجیکٹ میں 9واں سبق سوشل ہیلتھ یعنی سماجی صحت، اس کا پارٹ 2 سیکھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ میں آپ تمام بچوں کا اس کلاس میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ بچوں، پارٹ 2 شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل علم کے پروانے اسے لائک کرے، سبسکرائب کرے اور تمام دوستوں میں شیئر کرے۔ تو بچوں، چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں 9واں سبق کا پارٹ 2۔ دیکھیے بچے، ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں 10 ذیل نکات سیکھیں۔ پہلے سماجی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے عوامل، جس میں ذہنی تناؤ تھا، لت یعنی ایڈکشن تھا، ناقابل علاج بیماریاں irremediable ڈیسیز، میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے نقصانات کیا کیا تھے یہ ہم لوگوں نے سمجھے، سائبر جرائم کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سمجھا۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے تناؤ کی روک تھام کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو چلیے بچے، تناؤ کی روک تھام ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ نے عوامی گارڈن میں صبح کے وقت کچھ لوگوں کو ایک ساتھ یکجا ہو کر قہقہے لگاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، زور زور سے ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ شاید کہیں نہ کوئی گارڈن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اسے مجلس قہقہا لافٹر کلب کہا جاتا ہے۔ اس مجلس میں گروپ میں لوگ زور زور سے اور جی کھول کر ہنستے ہیں، اور یہ ہنسنے والے یہ افراد اپنے تناؤ کو دور کرتے ہیں، ایسا یہ لوگ مانتے ہیں، اور اس سے کسی حد تک یہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ لوگ اپنے دکھ درد کو، تناؤ کو بھول جاتے ہیں۔ دوست، ساتھی، بھائی بہن، اساتذہ، سب سے زیادہ اہم سرپرست، ان تمام افراد سے گفتگو کریں۔ قریبی شخص سے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا، دل میں آئے ہوئے خیالات کو لکھنا، اس طرح سے تناؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے تناؤ کم کرنے کے لیے کہ آپس میں مل کے قہقہے لگانا، یعنی کہ ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے سے ہنسنا بولنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہاں پہ دوسرا ایک تصویر دی ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں دوست لوگ جو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو کہتے ہیں، تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، تناؤ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی آپس میں لوگ بیٹھیں، اگر ایک دوسرے سے باتیں کریں، ایک دوسرے کی جو دل کی بات، دل کا حال ایک دوسرے کو بتائے، اگر کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپس میں اگر ایک دوسرے سے بات کریں تو یہ دکھ تکلیف کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تناؤ کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ طریقے اور کچھ ترکیب اور دکھائی گئی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھو دیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ریڈ لائن سے، اشیاء کا ذخیرہ کرنا، فوٹوگرافی، اعلیٰ قسم کی معیاری کتابوں کا مطالعہ کرنا، پکوان کا ہنر یعنی پکانے کا جو ہنر ہوتا ہے ایک بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی انٹرسٹ آتا ہے اس میں پکانے میں کچھ لوگوں کو، تو یہ اپنا جو وقت ہے پکانے میں جو ہے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے تناؤ دور ہوتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے اس میں۔ مجسمہ سازی، بہت سارے لوگ مجسمہ بناتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ رنگولی بناتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہندو لوگ جو ہے اپنے گھروں کے سامنے دیوالی کا جب تہوار آتا ہے تو رنگولی بناتے ہیں، اس میں ان لوگوں کو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رقص یعنی کہ ڈانس کرتے بہت سارے لوگ خوش ہونے کے لیے۔ موسیقی یعنی کہ میوزک جیسے مشاغل اپناتے ہیں۔ ہمارے بیکار وقت کا مثبت استعمال اس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے تناؤ، بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ مثبت چیزوں کی جانب توانائی اور دل لگانے سے منفی اجزاء جو ہے خود بخود ہمارے ذہن سے، ہمارے دلوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو بچے لوگ، یہاں پہ یہ چیزیں دی ہوئی ہے،
आप अगर इसको गौर से देखेंगे, यहाँ बीच में जो फोटो दिया हुआ है, बहुत सारी जो एंटीक चीजें जमा करने का बहुत से लोगों को शौक होता है, इसके अंदर मशगूल रहते हैं और अपनी जिंदगी के तनाव, दुख, दर्द, तकलीफ सब भूल जाते हैं। पेंटिंग है, मुजस्समा साजी है, यहाँ रंगोली बना रहे हैं, नीचे की तरफ किताब बीनी, किताब पढ़ के एक लड़का जो है मजा ले रहा है, यहाँ डांस करके एक मजा ले रहा है। यहाँ पे एक लड़का कार्टून टाइप में दिखाया गया है कि ये जो है ना म्यूजिक जो है ना एंजॉय कर रहा है, इधर कुकिंग कर रहा है। इस तरह से तनाव दूर करने के ये तरीके हो सकते हैं। तो मसरत मौसीकी यानी कि म्यूजिक सुनना, गाने सुनना, बहुत सारे लोगों को आजकल जो है ना बड़ा इंटरेस्ट आता है इसके अंदर और अपने दुख दर्द और कैफियत को, जो दुख वाली कैफियत होती है उसको भूल जाते हैं, है ना। जो टेंशन होता है वो टेंशन दूर हो जाते हैं म्यूजिक सुनने से। किसी हद तक जो है गाना वगैरह अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनना, इससे जो है ना हमारे जो तकलीफ या टेंशन जो आया हुआ रहता है वो खत्म हो जाते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बाकायदा वर्जिश करना, पुट्ठे की मालिश करना, मसाज करना जैसी तदाबीर को तनाव कम करने के लिए एक जरिया बताया गया है। योगासन, प्राणायाम तक महदूद नहीं है। योगासन देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना। वर्जिश यहाँ पे कर रहे हैं, पहले के फोटो में दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद में योगासन है, यहाँ पे योगासन कुछ करते हुए फोटो में दिखाया गया है। योगासन जो योगा करते हैं, आप लोगों ने बड़े ही मशहूर योगी बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, और भी ऐसे बहुत सारे योगी लोग हैं जो योगासन के एक्सपर्ट लोग हैं, योगासन सिखाते हैं। और ये कहा जाता है कि योगासन करने से जो है हमारा जहन और हमारा जिस्म हल्का फुल्का रहता है और तनाव से दूर रहता है। मुतवाज़न मुक़व्वी ग़िज़ा खाना, मुराक़बा करना, मुहासबा करना, है ना, ऐसे कई अज्जा शामिल है जो हमारी ज़िंदगी से तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे सांस रोकना भी है, सुकून की नींद सोना। नींद जो है एक बहुत अहम चीज़ है, टेंशन लाने के लिए भी और टेंशन को दूर करने के लिए भी। किसी शख्स की अगर नींद बराबर नहीं होती है, नहीं सोता है, वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और अगर पुरसुकून नींद लेता है तो उसका जहन एकदम पुरसुकून होता है। योगा आसन से जिस्म को फ़ायदा मिलता है। मुराकबे से ख्यालात में यकसुई पैदा करने की आदत पड़ती है। फितरत में ताउन पैदा होता है। तलबा को मुताले में यकसुई बढ़ाने के लिए मुराकबा बहुत ही मुफीद साबित होता है। यहाँ देखो बच्चे लोग कुछ यहाँ दिखाए हुए मुराकबा कर रहे हैं, ये भी एक योगासन का एक अमल है जिसके अंदर जहन को मरकूज किया जाता है एक जगह, जहन को इधर उधर भटकने नहीं दिया जाता है, किसी एक नुक्ते के ऊपर मरकूज करके और अपने आप का जो है इससे जहन कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है। ये एक वर्जिश है कंसंट्रेशन बढ़ाने की, जिसकी वजह से बच्चों का हाफिजा भी बढ़ता है और जहन भी बढ़ता है। वक्त की मंसूबाबंदी, अपने कामों की मंसूबाबंदी, है ना, फैसला करने की सलाहियत जैसी खूबियां खुद में कसदन पैदा करना, यानी समाजी लिहाज से मजबूत मिसाली शख्स तैयार करना कह सकते हैं। वक्त की मंसूबाबंदी, हर चीज़ कब कौन से वक्त में करना चाहिए, जैसे हम लोगों के बारे में कि पढ़ाई कब करना चाहिए, खेलना कब चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, है ना, थोड़ी वक्त गुजारी कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की पाबंदी हम लोगों के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों, ये तमाम चीज़ें भी जो है तनाव को दूर करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। अब देखो, कुछ लोगों को ये तनाव की इतनी शिद्दत होती है कि वो इन तमाम चीज़ें जो जिक्र की गई अभी, इससे ये तनाव दूर नहीं होता है ना। उनके अंदर हमेशा के लिए एक उदासी यानी कि डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर चले जाते हैं, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मसाइल इनसे पैदा हो सकते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए ये ज़रूरी है कि किसी माहिर डॉक्टर से मदद ली जाए, तिब्बी मदद ली जाए, मशावरत किया जाए, जिसको काउंसलिंग कहते हैं। बहुत सारे काउंसलर डॉक्टर होते हैं, उनके पास में ऐसे शख्स को लेके जाएं तो उनकी काउंसलिंग करके, उनकी जहन साजी करके उनके नफ्सियाती मर्ज का इलाज करते हैं। इसी तरह गैर सरकारी रजाकार तंजीमें भी बहुत सारी है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए और उनको मुनासिब रहनुमाई करने में के लिए। इनमें से चंद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तंबाकू के खिलाफ एक मुत्तहिदा तहरीक, अभी हम लोग यहाँ पे जो एनजीओस के बारे में, जो गैर सरकारी रजाकार तंजीमें कहा गया था, जिनके बारे में हम लोग मालूमात हासिल करने जा रहे हैं,
تو یہ तंबाकू के खिलाफ एक मुत्तहिदा तहरीक यहाँ पे शुरू की गई है। जिसने शुरू किया है मुत्तहिदा तहरीक तंबाकू के खिलाफ, वो है आलमी अदारे सेहत, जिसको इंग्लिश में WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा हिंदुस्तान में टाटा ट्रस्ट जैसे 45 मशहूर अदारे ने एक साथ आकर ये तहरीक शुरू की है। तंबाकू नोशी पर काबू, तंबाकू नोशी के खिलाफ काम करने वालों की रहनुमाई जैसे मुख्तलिफ मकासद के तहत तहरीक शुरू की गई है। उसके बाद देखें, दूसरा यहाँ पे तहरीक जो है बहुत ही मशहूर है, जो नाम इसका है सलाम मुंबई फाउंडेशन। खतरे की आखिरी हद पर जिंदगी बसर करने वाले झोपड़पट्टी के बच्चों को तालीम, खेल कूद, फनून लतीफ़ा, कारोबार करने के काबिल बनाने के लिए ये इदारा मुंबई के कई स्कूलों में प्रोग्रामों का इनेकाद करता है। तालीम, सेहत, मेयारी ज़िंदगी के ताल्लुक से फैसला करके तलबा को स्कूल में तालीम हासिल करने के काबिल बनाता है। इस ट्रस्ट की मुसलसल कोशिशों से महाराष्ट्र के कई जिलों के अंदर तंबाकू नोशी से आज़ादी मिल चुकी है। 2002 से ये अदारा तंबाकू से आज़ाद समाज बनाने के लिए शहरी और देही इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। यानी ये लोगों ने, ये तंजीम जो है मुंबई सलाम मुंबई फाउंडेशन, एक बेड़ा उठाया हुआ है कि हम लोग जो है हमारे इलाके से, हमारे मुंबई और मुंबई के एतराफ़ के इलाके से तंबाकू मुक्त जो है गांव कर देंगे, शहर को तंबाकू मुक्त कर देंगे, लोगों से तंबाकू की लतें छुड़ा देंगे। तो 2002 से ये इदारा जो है ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है बहुत ही मुस्तैदी से। मुंबई में तकरीबन 200 स्कूलों में, जबकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1400 स्कूलों में इस मंसूबे को अमल में लाया जा रहा है। हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक हर एक स्कूल में तंबाकू से परहेज का अहद लिया जाता है। आप अगर देखेंगे तो इसका एक वेबसाइट है, तंबाकू से मुक्त हिंदुस्तान का एक अहद लिया जाता है। यहाँ पे देखो हुकूमत की कोशिशें और मंसूबे यहाँ पे दिए हुए। सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है ना, इसका एक लोगो लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ उनकी जो है कारकर्दगियाँ यहाँ पे फोटो के जरिए दिखाई गई है, जाहिर की गई है। सेलिंग थ्रो स्लम्स, झोपड़पट्टियों के अंदर ये लोग बच्चों के ऊपर काम करते हैं। तंबाकू मुक्त जो है हम लोग का महाराष्ट्र और मुंबई बनाने के लिए ये बच्चे रजाकार लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ड्रामे के जरिए लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ पुलिस वाले और कुछ बच्चे साथ में खड़े हुए, कुछ सर्टिफिकेट जो है पुलिस वाले बच्चों को दे रहे हैं जो अच्छा काम इसके तहत किए हैं, उनको हौसला अफजाई करने के लिए। हुकूमत की कोशिश और मंसूबे क्या है? मसाइल से मुतासिर मुख्तलिफ तकलीफ का सामना करने वाले बच्चों के लिए पुलिस सलाहकार के फ़ोन नंबर अखबारात में शाये होते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा अगर किसी जुर्म में फंस जाए या कोई लत में लग जाए या उनको कोई नशे की आदत लग जाए या अगर वो जो है ना किसी मुसीबत में फंसे हुए, तो नंबर यहाँ पे दिया जाता है। पुलिस वाले वक्तन फ़वक्तन अखबारों में नंबर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं और इनको अगर किसी ने कॉल करके बता दिया, उसके बारे में इल्म किया, तो ये बाकायदा उनको मुनासिब रहनुमाई इनकी तरफ से की जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग का ये सबक इतना ही था। यहाँ पर हम लोग का सबक ख़त्म होता है और मैं तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो थोड़ा सा पार्ट 2 था, जो कोशिश की गई थी, इसकी आप लोग अपनी तरह से मदद से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।